Hello everyone, welcome to Coding Draft by Kanika. Today we are going to start new series of data structures. So in this video, we will discuss about data structures, classification of data structures, linear data structures and non-linear data structures. Before starting data structure, we need to understand what is data. Data are simply values or sets of values. Data can represent raw facts, figures, or any other form of information that a program needs to process. Data can take many forms such as text, numbers, images, etc. Data may be organized in many ways. The logical or mathematical model of a particular organization of data is called a data structure. It is a data organization and storage format that is usually chosen for efficient access to data. Data structure is a format for organizing, storing, and managing data in computer's memory or storage. डेटा स्ट्रक्चर डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर और एक्सेस करने का एक तरीका होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. डेटा स्ट्रक्चर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड दूसरा है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर. स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि एरेज, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट and non-linear data structure जैसे कि trees and graphs. Now we will discuss about linear data structures. Linear data structures, the data structures in which data elements are arranged sequentially. ऐसा data structure है जिसमें data elements को sequence और connected order में रखा जाता है. Now linear data structure is further classified into two parts, static data structure and dynamic data structure. Static data structure, these data structures have fixed size and are allocated in memory during compile time. Static data structure ऐसे data structures जिनका एक fixed size होता है जैसे कि arrays. Dynamic data structures, size of dynamic data structure is not fixed and are allocated at runtime. Dynamic data structure ऐसे data structure जिनका fixed size नहीं होता. आप इनके नाम से ही देख सकते हो. स्टैटिक मीन्स फिक्स होना, वेरी ना करना, एंड डायनेमिक मीन्स वेरी करना. इसीलिए डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स में साइज फिक्स नहीं होता एंड स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स में साइज फिक्स होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एरेज. एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड इट इज अ कलेक्शन और लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप stored at contiguous memory locations. एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो एक जैसे डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को एक साथ कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करता है. अब एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं और मैंने इनको एक लिस्ट में डिफाइन कर दिया है और ये हमारी एरे बन गई है. क्योंकि ये सब सेम डेटा टाइप के हैं, इंटीजर वैल्यू है, तो ये आपकी क्या बन गई, एक एरे बन गई. एंड एरे में इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से. तो जो पहला एलिमेंट होगा वो इंडेक्स 0 पर होगा. सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, थर्ड एलिमेंट सेकेंड इंडेक्स पे होगा, फोर्थ एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पे होगा एंड सिमिलरली फिफ्थ जो एलिमेंट है मेरा वो फोर्थ इंडेक्स पे होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टैक. लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO is a linear list in which insertions and deletions can take place only at one end called top. Stack एक linear data structure है जिसमें हम data elements को सिर्फ एक ही तरफ से push और pop कर सकते हैं. अब push और pop क्या है? Push means add या insert करना, pop means remove या delete करना. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो ये एक stack है और स्टैक में एलिमेंट्स टॉप से ही इंसर्ट होंगे और टॉप से ही डिलीट होंगे. यानी कि जो सबसे आखिरी में आएगा वो सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्यू.
First in, first out FIFO is a linear list in which deletions can take place at one end, that is front of list, and insertions can take place only at other end, that is rear of list. क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डिलीशन एक एंड से होता है और इंसर्शन दूसरे एंड से होता है। क्यू में जो भी आइटम सबसे पहले ऐड होता है उसी आइटम को सबसे पहले रिमूव किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, ये मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं। क्यू में जो भी एलिमेंट सबसे पहले आता है उसी एलिमेंट को हम सबसे पहले बाहर निकालते हैं। Now we will discuss about linked list. It is a linear data structure which consists of elements called nodes, each containing data and a reference to next node. Linked list एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर एलिमेंट को एक लीनियर ऑर्डर में स्टोर किया जाता है। लिंक्ड लिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम एरेज क्योंकि लिंक्ड लिस्ट में एलिमेंट्स को कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर नहीं किया जाता जैसा कि एरेज में किया जाता है। लिंक्ड लिस्ट में हर एलिमेंट को नोड कहा जाता है। हर नोड के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जिसे हम डेटा कहते हैं जिसमें वैल्यू स्टोर की जाती है, और दूसरा पार्ट पॉइंटर कहलाता है जिसमें अगले नोड का एड्रेस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 नोड्स हैं एंड हर एक नोड के 2-2 पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं। पहले नोड में आपका डेटा होता है एंड दूसरे नोड में आपका नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है जिसे हम पॉइंटर कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स in which data elements are not arranged sequentially. Here we cannot traverse all elements in a single run. Example, trees and graphs. Trees data frequently contain a hierarchical relationship between various elements. The data structure which reflects this relationship is called a tree, or where elements are arranged in a tree-like structure. जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर एग्जाम्पल डायग्राम बना हुआ है। ये आपका एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। Now we will discuss about graphs. Data sometimes contain a relationship between pairs of elements which is not necessarily hierarchical in nature. This type of data structure is called a graph, or which consists of vertices and edges. And अगली वीडियो में हम algorithmic notations डिस्कस करेंगे। I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel.